बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, today we will discuss terrestrial ecosystem with producers and consumers of grassland ecosystem. Terrestrial ecosystem. The nature of a terrestrial ecosystem is determined on the basis of two groups of ecological factors, namely climatic and edaphic factors. The climatic factors include temperature, moisture, and light, while the edaphic factors are soil and topography. Grassland ecosystem and forest ecosystem are examples of terrestrial ecosystem. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की नेचर को इकोलॉजिकल फैक्टर्स के दो ग्रुप्स की बुनियाद पर डिटरमिन किया जाता है। इनमें क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स शामिल हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट शामिल हैं, जबकि सॉइल और टोपोग्राफी एडाफिक फैक्टर्स हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. Grassland vegetation comprises of herbaceous plant species. The dominant species are gramineads. Natural grasslands once occupied at least 1/3 of the land surface of the earth. Still, they are spread widely over the whole world. ग्रासलैंड वेजिटेशन हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज पर मुश्तमिल है। इनमें ग्रामिनाइड्स डोमिनेंट स्पीशीज हैं। ग्रामिनाइड्स ग्रास या ग्रास की तरह प्लांट्स हैं। एक बार नेचुरल ग्रासलैंड से लैंड सरफेस का 1/3 हिस्सा ऑक्युपाइड था। अभी भी ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। The principal grassland ecosystems of world are: first, Great Plains of Canada and United States; second, the Pampas and other grasslands extending from South Argentina to Brazil; third, the steppes extending from South Russia to Central Asia; fourth, the grasslands of Central Australia and Welt; fifth, ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका। दुनिया के नुमायां ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स ये हैं। नंबर 1, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट प्लेन्स। नंबर 2, पैम्पास और दूसरे ग्रासलैंड्स जो कि साउथ अर्जेंटीना और ब्राज़ील तक फैले हुए हैं। नंबर 3, स्टेप्स जो कि साउथ रशिया और सेंट्रल एशिया तक फैले हुए हैं। नंबर 4, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया और वेल्ट की ग्रासलैंड्स। नंबर 5, साउथ और सेंट्रल अफ्रीका की ग्रासलैंड्स। एज कंपेयर्ड टू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम occurs in the region where there is so much drought that forests cannot exist. The climate is just favorable for perennial herbaceous cover that is lacking in a desert. Mean annual precipitation in temperate grasslands ranges from 250 mm to 750 mm, while in tropical and subtropical grasslands it reaches about 1500 mm. Thus, grasslands occur in the regions where mean annual rainfall is midway between a forest and desert. फॉरेस्ट की निस्बत ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऐसे रीजन में पाया जाता है जहां पानी की कमी ज़्यादा होती है। ऐसे रीजन में फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ की क्लाइमेट पेरेनियल हर्ब्स के लिए फेवरेबल होती है और ये हर्ब्स फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में
एनुअल प्रेसिपिटेशन 250 मिलीमीटर से 750 मिलीमीटर तक होती है, जबकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में एनुअल प्रेसिपिटेशन 1500 मिलीमीटर तक हो जाती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ग्रासलैंड्स ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जिनमें एनुअल रेनफॉल फॉरेस्ट और डेजर्ट की रेनफॉल के दरमियान हो। Producers in grassland ecosystem. Grasses are the main producers of grassland ecosystem. Certain forbs such as composites, legumes, and some other herbaceous plant species are also associated with grasses, but their density or relative abundance is much low. ग्रासेस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के मेन प्रोड्यूसर्स हैं। कुछ फॉर्म्स जैसा कि फैमिली कंपोजिटी, फैमिली लेग्यूमिनोजी के मेंबर्स और दूसरी हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज़ भी ग्रासेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी या रिलेटिव अबंडेंस ग्रासेस की निस्बत बहुत कम होती है। Layering is characteristic of grasslands. Tall grasses, mid grasses, short grasses, forbs, and dwarf species such as mosses and lichens may form vertical zones or layers. Tall grasses include species of Andropogon, Panicum, Sorghestrum, etc. Mid grasses include species of Stipa, Sporobolus, Agropyron, etc. Short grasses include species of Botlona, Poa, Bromus, etc. लेयरिंग ग्रासलैंड्स की खासियत है। टॉल ग्रासेस, बीट ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस, फॉर्ब्स और डवार्फ स्पीशीज़ जैसा कि मॉसेस और लाइकन्स वर्टिकल जोन्स या लेयर्स बना सकते हैं। टॉल ग्रासेस में एंड्रोपोगॉन, पेनिकम और सॉर्गेस्ट्रम वगैरह की स्पीशीज़ शामिल हैं। मिड ग्रासेस में स्टाइपा, स्पोरोबोलस, एग्रोपायरॉन वगैरह की स्पीशीज़ शामिल हैं, जबकि शॉर्ट ग्रासेस में बोटुलोना, पोआ, ब्रोमस वगैरह की स्पीशीज़ शामिल हैं। Dear students, here we can see tall grasses like Andropogon, Panicum, Sorghestrum. Here we can see mid grasses like Stipa, Sporobolus, Agropyron. Here we can see short grasses like Botilona, Poa, Bromus. Root layering is also a characteristic of grassland community. There is a direct relationship between the shoot length and root length. Root length is also related to the soil water, since roots penetrate only to the depth of moisture. Roots of plants tend to grow deeper in sandy soil as compared to clay soil because water penetrates deeper in the sandy soil. रूट लेयरिंग भी ग्रासलैंड कम्युनिटी की खासियत है। शूट लेंथ और रूट लेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रूट लेंथ सॉयल वाटर से भी रिलेट करती है, क्योंकि रूट्स सिर्फ मॉइस्चर की डेप्थ तक पेनिट्रेट करती हैं। प्लांट्स की रूट्स क्ले सॉइल की निस्बत सैंडी सॉइल में ज़्यादा गहराई तक ग्रो करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पानी सैंडी सॉइल में दूसरी सॉइल्स की निस्बत गहराई तक जाता है। There is a wide variability of climate in the grassland ecosystems. Therefore, there is remarkable difference in vigor and growth of grasses. Short grasses dominate in the areas where mean annual rainfall ranges from 100 mm to 300 mm. Mid grasses
and tall grasses flourish well in semi-arid and subhumid climates. High grasses occur in subtropical regions where rainfall is appreciably high. ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में क्लाइमेट की वसी वेरिएबिलिटी होती है, इसलिए ग्रासेस की ग्रोथ और विगर में नुमाया फ़र्क होता है। शॉर्ट ग्रासेस उन एरियाज़ में डोमिनेट करती हैं जहां एनुअल रेनफॉल 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक होती है। मिड ग्रासेस और टॉल ग्रासेस सेमी एरिड या सब ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छा फ्लरिश करती हैं, जबकि हाई ग्रासेस सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं जहां रेनफॉल निस्बतन ज़्यादा होती है। Gramineids are more resistant to grazing and trampling than forbs. There are meristematic zones in the joints of their stems and leaves. The stem continues growth at any joint that is left after grazing, and bent over stem has capacity to stay 10. Similarly, grazed leaves renew their growth and form full herbage. Different species of grassland complete their growth cycles and bear flowers and seeds in different seasons. Thus, grassland ecosystem shows different aspects in different seasons of the year. फोर्स की निस्बत ग्रेमिनाइड्स ग्रेजिंग और ट्रैम्पलिंग के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इनके स्टेम्स और लीव्स के जॉइंट्स में मेरिस्टेमेटिक जोन्स पाए जाते हैं। स्टेम उस जॉइंट से ग्रो करना शुरू कर देता है जो कि ग्रेजिंग के बाद बाकी रह गया था, और झुके हुए स्टेम भी सीधा होने की कैपेसिटी रखते हैं। इसी तरह से ग्रेज लीव्स भी ग्रोथ को रिन्यू करते हैं और फुल हर्बेज बनाते हैं। ग्रासलैंड्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ अपना ग्रोथ साइकिल कंप्लीट करती हैं और इनमें मुख्तलिफ सीजन्स में फ्लावर्स आते हैं और सीड्स बनते हैं। इस तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम साल के डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स शो करता है। The absence of trees in a grassland is a striking feature. It is often due to aridity. The soil moisture is limited on account of low precipitation and high evaporation. Trees cannot compete with grasses because the upper soil layers in which grasses are rooted are moist, but deeper layers where the roots of trees are present are dry. Other factors that account for treelessness of grasslands are impermeable soil, excessive salinity and poor drainage. किसी भी ग्रासलैंड में ट्रीज़ का ना होना अहम पहलू है। अक्सर ये एरिडिटी की वजह से होता है। लो प्रेसिपिटेशन और हाई एवापोरेशन की वजह से सॉइल मॉइस्चर लिमिटेड होता है। ट्रीज़ ग्रासेस के साथ compete नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल की अपर लेयर्स जिसमें ग्रासेस की रूट्स होती हैं मॉइस्ट होती हैं, जबकि डीपर लेयर्स जहां ट्रीज़ की रूट्स होती हैं ड्राई होती हैं। ग्रासलैंड में इम्परमिएबल सॉइल, एक्सेसिव सैलिनिटी और पुअर ड्रेनेज की वजह से भी ट्रीज़ नहीं होते। Natural grasslands had developed in areas where fires spread. Herbaceous vegetation is more resistant to fire than forest trees because pollinating buds of the herbs are located near the soil surface, where they are less exposed to fire. Similarly, they have no pollinating stems. Grasslands are also developed in windy and snow-clad areas like Arctic region
and alpine mountain tops. नेचुरल ग्रासलैंड्स उन एरियाज में डेवलप हो चुके हैं जहां आग फैलती है। हर्बेशियस वेजिटेशन फॉरेस्ट ट्रीज की निस्बत आग के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि हर्ब्स के पेनिट्रेटिंग बड्स सॉइल सरफेस के नज़दीक पाए जाते हैं जहां ये आग से कम एक्सपोज होते हैं। इसी तरह से इनमें पेरिनेटिंग स्टेम्स भी नहीं पाए जाते। ग्रासलैंड, वाइंडी और स्नो क्लेड एरियाज जैसा कि आर्कटिक रीजन और अल्पाइन माउंटेन टॉप पर भी डेवलप हैं। यहाँ टेम्परेचर शदीद होता है और टिम्बर लाइन से आगे वेजिटेशन नहीं होती। Consumers in grassland. Natural grasslands are inhabited by a large variety of consumers. These animals show protective mechanisms against the harsh and rigorous environment. Some live in burrows while others migrate to escape winter. Functionally, they are herbivores, predators, and scavengers. नेचुरल ग्रासलैंड्स में बहुत सी अकसाम के कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में हार्श और रिगुरस इन्वायरमेंट के मुकाबले में प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं। सर्दी से बचने के लिए कुछ बरोज में रहते हैं जबकि दूसरे माइग्रेट कर जाते हैं। ये कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स, प्रीडेटर्स और स्केवेंजर्स हैं। Dominant species are herbivores, the primary consumers. They are grazing animals. They exist together without much competition because they have evolved specific grazing habits with regards choice of species to be eaten, parts of the plants to be used, and season of use. Moreover, large herbivores graze on certain plant species and these plant species are finished, while those plant species are left to flourish, which are eaten by small herbivores. प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं। ये ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। इनमें आपस में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता क्योंकि इनमें मखसूस ग्रेजिंग हैबिट्स होती हैं। इनके अफराद मखसूस प्लांट स्पीशीज़ और प्लांट पार्ट्स खाते हैं। इसी तरह से मखसूस सीज़न में मखसूस प्लांट्स खाते हैं। लार्ज हर्बीवोर्स चंद मखसूस प्लांट स्पीशीज़ को खाते हैं और वो प्लांट स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जबकि वो प्लांट स्पीशीज़ ग्रो करने के लिए बाकी रह जाती हैं जिन्हें स्मॉल हर्बीवोर्स खाते हैं। Mammals are mostly running or burrowing type. They are mostly found in herds. Their gregarious habit helps them in guarding against predators. These animals migrate from one grassland to other. If food supply is reduced on account of overgrazing in a certain locality, the common running animals of different grasslands of world are antelopes, deer, wild horses, zebras, kangaroos, etc. Most of the herbivores are small, like rabbits and species of rodents. मैमल्स ज़्यादातर रनिंग और बरोइंग टाइप होते हैं। ये आमतौर पर रेवड़ की सूरत में पाए जाते हैं। इनकी मखसूस सोशल आदत इनको प्रीडेटर से बचाती है। अगर किसी जगह पर ओवरग्रेजिंग की वजह से फूड सप्लाई कम हो जाती है तो ये एनिमल्स एक ग्रासलैंड से दूसरी ग्रासलैंड को माइग्रेट कर जाते हैं। दुनिया के डिफरेंट ग्रासलैंड के कॉमन एनिमल्स एंटीलोप्स, डेयर, वाइल्ड हॉर्सेस, ज़ेब्रास, कैंगरोज वगैरह हैं। बहुत से हर्बीवोर्स स्मॉल होते हैं जैसे कि रैबिट्स और रूडेंट्स की स्पीशीज़। Invertebrates including insects which are very numerous both above and
below ground. Some feed on leaves, others consume roots and debris, reducing them to form more suitable for attack of microorganisms. Sometimes grasshoppers become so numerous that they compete with other herbivores for plant foliage. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स शामिल हैं, जो कि ज़मीन के ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें कुछ लीव्स को खाते हैं, जबकि दूसरे रूट्स और डेब्रिस से खुराक हासिल करते हैं। इससे ये मटेरियल मज़ीद टूट फूट जाता है और ये मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक के लिए मज़ीद सूटेबल बन जाता है। बाज़ औक़ात ग्रासहॉपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ग्रासहॉपर्स प्लांट फोलिएज के लिए दूसरे हर्बीवोर से compete करते हैं। Predators of grassland ecosystem are reptiles, amphibians and mammals. Lizards, toads and box turtle prey on insects, while snake prey on rodents and small invertebrates. Predaceous mammals are foxes, wolves, etc. Change in number of any group of herbivores soon induce change in number of predators and parasites, and consequently changes in vegetation. एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम के प्रीडेटर्स हैं। लिजर्ड्स, टोड्स और बॉक्स टर्टल्स इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, जबकि स्नेक्स, रूडेंट्स और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स का शिकार करते हैं। भेड़िए और लोमड़ियाँ शिकार करने वाले मैमल्स हैं। हर्बीवोर्स के किसी ग्रुप में तादाद की तब्दीली प्रीडेटर और पैरासाइट की तादाद में तब्दीली को इंड्यूस करती है और नतीजतन वेजिटेशन चेंज हो जाती है। द ग्रासलैंड्स एनिमल्स हैव adopted their reproductive behavior to meet availability of food. In early spring or early summer, there is green herbage, hence the young ones of large herbivores are born in these seasons. Many birds form nests on the ground. Prominent birds of meadow are meadowlark, horned lark, hawks, and prairie chicken. These birds feed on seeds or mixture of seeds and insects. ग्रासलैंड में पाए जाने वाले एनिमल्स ने खुराक की तरसील की खातिर अपना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर अडॉप्ट किया है। अर्ली स्प्रिंग या अर्ली समर में ग्रीन हर्बेज यानी खाने के लिए ग्रासेस वगैरह ज़्यादा होती हैं, इसलिए इन सीजन्स में हर्बीवोर्स के ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बहुत से परिंदे ग्राउंड पर घोंसला बना लेते हैं। मीडोलार्क, हॉर्नलार्क, हॉक्स और प्रेरी चिकन मीडो के प्रोमिनेंट बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स सीड्स या सीड्स के मिक्सचर और इंसेक्ट्स से खुराक हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।